जगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. Nice to see you after a long time. Thank you so much. Dr. Jagat Shah is a very, very passionate business advisor. And he helps in business by developing global networking. He has put in 23 years in business development and market research. He has served over 600 clients, generated business of more than $800 million, and he has worked in 22 countries. He has undertaken so many training batches and done so many seminars in the world. Rightly, he is called a roadie and mentor on road, because he's traveling by road and mentoring people on the way. What a wonderful way to do it, because he has done road trips of more than 6 lakh kilometers to provide mentoring to people by traveling on road. Wonderful. I think you are unmatched in the world this way. He has also helped build 62 smart villages through his global connections. Professionally, he does trade consulting, market research, B2B matchmaking, investment promotions, innovations, and cluster development. He is also working in projects like Make in India, Startup India, Skill India, Digital India, Clean India, Smart India. What else? I think you are doing it all. So impressed by your profile, Jagatji. I think our audience has a lot to learn from you. Over to you. आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए किस प्रकार की अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए. ओवर टू डॉक्टर जगत शाह, प्लीज. Thank you, Rakesh ji, or thank you for the invitation from BJS. And I was seeing, Rakesh ji, that the subject which you have sent to me today, your topic is of the conclave, reset, evolve, and grow, right? And it is very interesting that last year in April, when lockdown started in our country, and all these pandemic challenges, I had started. We used to do a lot of seminars earlier all over the world. We used to go physically and conduct, but then we had to do online, right? So, and we started promoting these three words in a different way, but we started telling how to change your business model. Now you are at home, how to grow your business, even if you have a factory, even if you are in trading, or even if you are in services, how to grow your business. And that I will talk about. और मेरा ऐसा मानना है कि अब हम लोग एक ऐसी इकोनॉमी में एंटर कर गए हैं जो बहुत सालों से कर गए थे, लेकिन इंडिया में हम लोगों ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था. राकेश जी, हिंदी इज ओके, राइट? या मिक्स लैंग्वेज चलेगा. हाँ, ठीक है. So we had not taken it so seriously. Why? See, India is a IT producing country. We are not a IT user country. We are producing IT and exporting for other countries to become competitive. We are ourselves not using so much IT as we should be using, right? So what type of economy have we entered? I say we have entered 4 economies. One, we have entered a knowledge economy. Second, we have entered a digital economy. Third, we have entered a work from anywhere economy. And fourth is youth driven economy. So knowledge economy, it doesn't matter, my friends, whether you are manufacturing, trading, in services or professional, doesn't matter what you do. Until and unless you attach knowledge to your product or business, your business is not going to grow. Because knowledge is the differentiator now, right? So earlier in Hindi, in our Indian culture, we used to say Saraswati or Lakshmi ek saath nahi reh sakti. We used to say earlier, right? So teachers would not be very rich. But the thing has changed now, right? So IT is a very good example. IT is Saraswati and Lakshmi together. Pharmaceutical industry is Saraswati and Lakshmi together. So knowledge is now driving businesses. And knowledge is what is actually being reflected in IPRs and patents. And if you look at top 5, top 10, top 100 companies of the world, you will find they are knowledge-driven companies, 100%. Even India, you make a list of 100 Indian companies top, knowledge-driven companies. So what is knowledge? So I'll come to that in a second part. Second is digital economy. I promoted a concept and I'm encouraging you to practice. Do a digital audit of your business.
Divide your business into 5 functions: production, marketing, HR, finance, and administration. And see what percentage of the activities which you are doing in these 5 functions are digitalized. Right, okay. Production 20%, marketing 60%, HR 80%, finance 60%, whatever. You try to do that homework and see whichever is lower in percentage, are there technologies available to take it to a higher level? And that is where I come back to knowledge. Just go to Google search, just go to YouTube video, no Google search also. Go to YouTube video. This is what I was telling all entrepreneurs in lockdown. Go to YouTube video, write your pain point, whatever is your pain point, you will get amazing videos. You choose even time wise. You got 10 minutes, choose 10-minute videos only. You will get that option. Listen to only 2 or 3. You will get your technology solution of how to increase your finance digitalization. So this is digital economy. Third is work from anywhere economy. Work from home we started talking. Now we are talking work from anywhere economy. In April, May. In May, I spoke to the senior vice president of TCS. I said, what's happening, guys? What are you guys doing? Your people are at home. He said, yeah, huge problem. Server security. We don't know productivity. People working or not working. We are in a mess. I spoke to him in November. He said, Jagat, our TCS has taken a board resolution. 350,000 employees of TCS will work from home forever. We have sorted the server security issue. We have sorted productivity issue. I asked him how. He said, we have put an app in the laptop, in the computer. If a computer screen is not active for more than 20 minutes, a flag is raised. And if that is a lunchtime, that's okay. Otherwise, that's fine. So there is always a technology solution to any pain point. So he said, and they are going to save 630 crore rupees a year by not re-renting 93 buildings in the world, which they had rented. And by not having all that food in their canteens, which they used to give for free, and by not sending cars in the night for people to go to home. Imagine, right? So this is work from anywhere economy. A lot of manufacturers tell me, no, I have a manufacturing, I can't do work from home. So I ask them, can your finance function not be done by home? Can your HR function not be done by home? At least what functions can be done by home, you do it by home. Maybe shop floor activities you cannot do. But then I also honestly asked them, tell me, I said, put your hand in your heart and tell me honestly, when you go to factory, how much time do you go to shop floor? So he says, no, I call my production manager to my office. So, so we have to start changing our mindset to see what works. Okay, no problem. 6 days you are going to factory. Can you start going 4 days? And 2 days still work from home. Try 1 month, doesn't work, don't do. Go 6 days to factory. Try, So that is third. And the fourth is youth-driven economy. I started telling everyone, and it has given a wonderful result. What's happening in the country? Every year, 1.2, 1.5 crore young graduates are joining job market. Even with highest growth rate which we had any time in India, we were able to create jobs for 60 lakh people. What are the other people doing? And these are graduates. I'm not talking of illiterate. So it is very important for us entrepreneurs to create job opportunities for young people. So hire fresh graduates or student interns. And I have this formula, I call it hire for attitude, train for skills, empower them with authority, and develop a reporting system. And you will see what impact and result it brings to you. So these are the 4 factors I wanted to first share with you. Now I come to a second category. It is called competitiveness. See, when we talk of business, when we talk of surviving, when we talk of reset, evolve, grow, primarily at a macro level and strategy level, we are talking of competitiveness. Now, what is the definition of competitiveness? There are 4 factors in this definition. Efficiently create goods and services that meet global market demand, leading to rising living standard for everybody in the society, and which is sustainable into the future. These are the 4 components of competitiveness.
and try to implement this and try to write down and try to see in your business, how are these 4 things playing? I'll give you quick examples. What is efficiently create goods and services? I was telling all companies during lockdown, whatever business you are in, go to YouTube, see in your business what type of technology is being used by your competitors or by your other type of companies in your field in India and abroad, particularly in China. Okay. So, and see what is the gap between the two, and try to inculcate that into your business model. Try to see what kind of material, the raw material, whichever you are using, base material, is there some kind of a combination or a composite material or a permutation combination being done by other people, again from YouTube, material, process innovation. And then this is efficiently create goods and services. See who is doing how, benchmark study, and try to see what is your gap and try to cover it. Second, which meet global market demand. See, my understanding for 25 years is very clear. I have spent 6 years of my career in China. I was working as CEO of a Chinese textile company, right? Our first year sales was 70 lakh rupees. And when I left the company, our sales was 4,000 crore rupees. And we were a 100% export oriented company. I have known, I have understood, and I believe that exports is the way to take India to $5 trillion economy. Our Prime Minister, Mr. Modi, keeps talking of $5 trillion economy. We will have to touch that through exports. So that meets global market demand. Whatever business you are doing, and I always have challenged, for 20 years I have challenged. Tell me a product, I will tell you someone in India itself, forget around the world, in India who is exporting it. There is no product or service in India which cannot be exported. It is my challenge. I have been throwing this challenge forever. बकरी की लिंडी, आप सब लोग बकरी की लिंडी समझते हैं, वो एक्सपोर्ट हो रही है, 6.5 करोड़ का गुजरात की एक कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है. मैं उसको पूछता हूँ, आई हैव अ हैबिट टू आस्क एवरीबॉडी व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर बिजनेस. मैं उसको पूछता हूँ, बोलता है सप्लाई नहीं मिलती. And one American multinational company is his buyer. There is a company in Ahmedabad. I live in Ahmedabad. There is a company, Devendra Trading Corporation, just opposite Kalapur railway station. He is exporting rotten potato, सड़े हुए आलू. सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, वो इंपोर्ट करती है. उसमें से उन्होंने एक पेटेंटेड एयरलाइंस के लिए सॉल्यूशन बनाया है, जिसको जब वो डालते हैं, ब्रिक छोटी सी है, it increases the mileage of the aircraft by 30%. और उसके परचेज ऑर्डर में लिखा रहता है कि if more than 5% of potatoes are good quality, payment will be deducted. मैं उसको बोलता हूँ, कभी कोई क्वालिटी कॉन्फ्रेंस में मत जाना, सब लोग परेशान हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंस बंद हो जाएगी. हाँ, so I ask him same thing, biggest challenge, बोले सप्लाई नहीं मिलती. 15,000 18,000 रुपए की गुजरात समाचार में ऐड देते हैं, सड़े हुए आलू चाहिए. Now you think whether your product or service is better than this or not. If it is, it has an export market somewhere. It's a question of you do not know. It's a question, and already somebody in India is doing. The thing is, you do not know. The thing is, you do not know who is doing. You do not know to whom he is doing, what price he is doing, how he is doing. So it's a knowledge. I told in the beginning. It's a knowledge economy. Doesn't matter what business you are in. If you apply knowledge to your business will grow. Right. Third, rising living standard for everybody in the society. Why Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, why are they today $100 billion companies? And how did they start Amazon? Amazon, we have seen Jeff Bezos sitting in a small room for 4 years. We have seen pictures. Every big company of today was a small company sometime. How they became big? Today, every small company says, आदमी नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, छोड़ के चले जाते हैं, बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, मेरे से छोड़ के चले जाते हैं. So you think Amazon did not have this problem? बिल गेट्स ने तो कॉलेज से कंपनी चालू की थी, वो तो ग्रेजुएट भी नहीं था. They started giving 1%. मैं जेफ बेजोस हूँ, मुझे लगा कि ये लड़का होशियार है, लड़की होशियार है, I want this guy to work with me for 25 years. उसको 1% इक्विटी दे दी, तो नौकरी नहीं रही, वो तो मालिक हो गया कंपनी का. आज जिसके पास 2% फेसबुक की इक्विटी है, उसके $2 बिलियन 15,000 करोड़ की नेटवर्थ है, तो मालिक हो गया ना कंपनी का. काय को छोड़ेगा 25 साल. इक्विटी, वी हैव टू बिल्ड इक्विटी इन सोसाइटी.
ये हम नहीं करते, हमारे इंडियन कल्चर में है ही नहीं। इसीलिए हम लोग कई बोलते हैं अरे क्यों इंडिया में फेसबुक नहीं है, क्यों इंडिया में अमेजन नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि हमको इक्विटी देने की आदत नहीं है। ये हमको एक बना डेवलप करना पड़ेगा ये मेथोडोलॉजी। एंड फोर्थ, सस्टेनेबल इनटू द फ्यूचर। देखिए मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आप जो भी बिजनेस इस समय कर रहे करें, कंटिन्यू डूइंग, स्टार्ट वन न्यू इको फ्रेंडली बिजनेस, इट डजंट मैटर व्हाट इट इज, फाइंड आउट। दिन में 1 घंटा शुरू में, बाद में 2 घंटा उसके पीछे दें, बस 1000 दिन का टाइम दे उसको बनने को, 25 साल चलेगा वो बिजनेस। एक नया इको फ्रेंडली बिजनेस चालू कीजिए, अपना बंद मत कर दीजिए, क्योंकि आपको तो रेवेन्यू चाहिए ना, इसको तो पैसे कमाते कमाते देर लगने वाली है, लेकिन यही फ्यूचर है। हम लोग कभी भी फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं करते, जब फ्यूचर आ जाता है तो प्रिपेयर करते, तो 2 साल चाहिए प्रिपेयर करने को, फिर हम बोलते हैं हम तो सफर कर रहे हैं। वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम अर्ली। ये एक डेवलप्ड इकोनॉमीज की एक प्लस पॉइंट है, मैं मानता हूँ। मैं 4 साल मैं चाइना में जो काम किया उसके पहले 4 साल अमेरिका में मैं था। आई वाज वर्किंग इन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी एंड आई सॉ हाउ दे प्लान अमेजिंग। सो वो प्लानिंग एक हमारा एक फैक्टर है जो हमको लाना पड़ेगा। एंड प्राइमरीली थर्ड फैक्टर एक जो मेरे को बोलना है, इससे मैं क्लोज करूंगा, कि इनोवेशन। देखिए वॉट एवर बिजनेस यू आर इन, आई एम श्योर यू ऑल्सो नो देयर आर either 1000 companies in that business in India or 5000. There are, in every business in India there are so many people, right? Are you part of the crowd? जैसे सब कर रहे वैसे ही कर रहे, then don't complain about price, don't complain about 90 days 180 days उधारी, don't complain कि पैसा नहीं आया, डूब गया, don't complain कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, because you are part of the crowd. जो क्राउड करेगा वो आपको करना पड़ेगा. How will you separate yourself from the crowd? I call that as innovation. Innovation, people think it is like you develop a product, do a prototype, do a trademark, do a patent. No, that is 5% of innovation world. My definition of innovation is do one thing better than anyone else. I don't know what it is. You should know. It's your business. Do one thing better than anyone else. And then you see, then you get away from the crowd. Then you will do business in your terms. And I'll close by giving this one example. We used to do seminars, physical seminars. We used to charge a lot of money. We used to do all over the world, America, Canada, Australia, Europe, Africa, India, of course. Lockdown हो गया, अब सेमिनार नहीं कर सकते. The whole world started doing webinar. जिसको भी पूछो तो बोले आज 5 वेबिनार है, आज 8 वेबिनार मेरे को अटेंड करने का है. There was a saturation. We said, what should we do? So we started a program which is called Vibrant Inar. वाइब्रेंट इनार. वाई? क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात आपने सुना होगा, तो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू हुआ था तब हम इन्वॉल्व थे. उसके बाद वाइब्रेंट तमिलनाडु हमने ऑर्गेनाइज किया, मेरी कंपनी ने. वाइब्रेंट गोवा हमने ऑर्गेनाइज किया. तो वाइब्रेंट के नाम से हमको पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ रोड शोज. हर वाइब्रेंट के लिए वी गो टू 20 कंट्रीज एंड वी डू रोड शोज टू इन्वाइट पीपल. तो हमने वाइब्रेंट इनार नाम दे दिया, उसको ट्रेडमार्क कर दिया. ट्रेडमार्क भी ऑनलाइन होता है. आज वर्ल्ड में कोई वाइब्रेंट इनार नहीं कर सकता, और हमने चालू कर दिया वाइब्रेंट इनार. शुरू में लोगों को थोड़ी तकलीफ समझने वाइब्रेंट इनार क्या, बट जैसे पता चला इतना पॉपुलर हो गया कि लोग बोलते थे वेबिनार नहीं अटेंड करना, वाइब्रेंट इनार हाँ करेंगे, क्योंकि एक ही जना वाइब्रेंट इनार करता था, वो हम थे. तो भीड़ से, वेबिनार की भीड़ से अलग हो गए. हमने 106 वाइब्रेंट इनार किए लॉकडाउन में, ईच एंड एवरी पेड. एक वाइब्रेंट इनार में हमने अमेरिका में $100 पर पर्सन फीस रखी थी. 160 लोगों ने अटेंड किया. $100 पर पर्सन 2 घंटे का प्रोग्राम करने के लिए. वाइब्रेंट इनार की तब तक ऐसी एक रेपुटेशन हो गई थी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, जब मैंने कहा डिजिटल इकोनॉमी, आपका जो भी बिजनेस है यू कैन डू योर ओन नार. आप टेक्सटाइल में हो तो टेक्सटाइल नार, टेक्सटाइल कुछ सोचना पड़ेगा, टेक्सटाइल टी नार समथिंग, और ट्रेडमार्क कर दो. कोई नहीं कर सकता वो. ये नॉलेज का पार्ट हो गया. होल वर्ल्ड हैज बिकम डिजिटलाइज्ड. सबको पता चल गया कि इस तरह से भी मीटिंग हो सकती है. सबको पता चल गया सेमिनार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सबको पता चल गया B2B मीटिंग भी ऐसे हो सकती है. 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के मेरे क्लाइंट्स ने B2B मीटिंग में ये लॉकडाउन के अंदर ऑर्डर्स बुक किए हैं.
digitally. So business models have changed. Have we changed is the question we have to ask ourselves. And if we can understand that how to change, कोई ऐसा business नहीं है जो इन 4 चीजों को implement नहीं कर सकता. और राकेश जी, मैं आपके जरिए अपील करूंगा, किसी को भी ऐसा लगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ आप 1-to-1 मीटिंग करो. हम लोगों की ये सब मेरी एक्टिविटीज, कोई हम फीस वीस कुछ चार्ज नहीं करते, ये मेरा शौक है. हमारा बिजनेस अलग है, हम बहुत अलग अलग बिजनेस चलाते हैं. मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ऑनलाइन डिजिटली दिखा दूंगा, ये देखो आप ही की तरह का लोग ऐसा कर रहे हैं. देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. सो राकेश जी, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं 2-3 दिन बोल सकता हूँ. I know. Every time hearing you is a treat actually. बहुत अच्छा रहा. थोड़े से कुछ क्वेश्चन है, हम उसको ले सकते हैं. अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम, 8 मिनट का टाइम बचा है. तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जैसे आपने बताया कि आपको कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करने के लिए आपको ग्लोबल अलायंस करना पड़ेगा और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. अब हिंदुस्तान की जो एसएमईज हैं, उनके मन में ये रहता है कि मैं तो बहुत छोटा सा प्लेयर हूं मार्केट में, मैं कैसे किसी दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ में जाके कोलैबोरेशन कर सकता हूं, टेक्नोलॉजी ला सकता हूं, ये तो मैं तो इतना बड़ा हूं नहीं. तो ये बैरियर, जो मेंटल बैरियर है, इसको कैसे दूर किया जाए? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बहुत एप्रोप्रिएट पूछा आपने. आपको सरप्राइज होगा कि कनाडा के अंदर जितनी कंपनियां हैं ना, उसमें से 92% स्मॉल कंपनी है, मीडियम भी नहीं. 92% स्मॉल कंपनी है. वर्ल्ड की हर कंट्री में स्मॉल कंपनी है. स्मॉल कंपनी के साथ काम करो, पहली बात. दूसरी बात, अभी ये लॉकडाउन में, अच्छा आप देखिए, 50 साल से इंडिया वेंटिलेटर इंपोर्ट करता था. अहमदाबाद की एक कंपनी को नासा के साथ, नासा कितना बड़ा है, नासा तो उसका टाइप करवाया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, वेंटिलेटर अहमदाबाद में बनना शुरू हो गया, 400 वेंटिलेटर का एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया. छोटी कंपनी है वो, ऐसा कुछ नहीं होता है. इससे क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, आप अपना विजन क्या रखते हो उनके सामने. फॉरेन के अंदर बड़ी कंपनी भी हो ना, तो वो भी आपका विजन देखती है और आपकी सोच और आपको क्या करना है. बाकी बड़ी कंपनी छोड़ दो, छोटी कंपनी के साथ भी बहुत काम हो सकता है. सेम डेटा यूएस का है. यूएस में 86 कंपनीज ऑफ ऑल द कंपनीज इन अमेरिका आर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. कई लोग बोलते हैं नहीं, अमेरिका की स्मॉल कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो हम छोटी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं. और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बहुत बढ़िया, नासा के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप लोग गूगल करो, नासा स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज. 8,500 टेक्नोलॉजी है. 10 लाख रुपए से स्टार्ट करके 100 करोड़ रुपए तक की टेक्नोलॉजी है. 10 लाख रुपए, 10 लाख तो हम लोग कर सकते हैं ना. राइट. और टेक्नोलॉजी ले, वो सारी पेटेंटेड है. देखिए द ब्यूटी क्या है, वो पेटेंटेड है, कोई कर ही नहीं सकता. वो उस टेक्नोलॉजी का, आप तो अलग हो गए ना, यू बिकेम डिफरेंट, देयर इज नोबडी लाइक यू. आप ही के पास वो पेटेंट है. So you got exclusive rights to do this in your area. Yes. Absolutely. Very good. एक और दूसरा मन में क्वेश्चन आता है कि ये खास करके यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी जो हैं, दे आर वेरी एक्सप्लॉइटेटिव. हिंदुस्तान में लोग रिलेशनशिप बेस करते हैं, वहां एक्सप्लॉइटेटिव अप्रोच ज्यादा है. तो उनके साथ अगर हमको डील करना है तो विन विन डील कैसे हो? तो इसमें ऐसा है ना, देखिए ये है ना, डार्विन्स थियोरी ऑफ सर्वाइवल है, ये साइंस है. ठीक है, और ये क्या है कि वो बिग फिश ईट्स द स्मॉल फिश एंड इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, हम लोग आज भी हमारे भारत के जो एम्ब्लेम है उसमें अशोक चक्र दिखाते हैं. तो अशोका द ग्रेट ने तो सारी टेरिटरी कॉन्कर कर रखी थी ना, कॉन्कर कर करके इंडिया में बनाया था. तो तब तो हम लोग बड़े, वी वर स्ट्रॉन्ग, राइट. तो वो सही था. तो अभी हम लोग नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो हमारे साथ अगर ऐसा हो तो गलत है. तो ऐसा नहीं है. तो मेरा कहने का इसका क्या मतलब है, ये तो एक, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. नाउ पहले क्या था, इतने सालों की गुलामी, हमारा सारा वेल्थ चला गया, हम लोगों को मानसिकता, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिया, हमारी विलेज इकोनॉमी तोड़ दी, हम लोगों को बिल्कुल जीरो कर दिया 1947 में. अब वापस वो टाइम आया है जब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, वो हमारी धरोहर है 5,000 सालों की. वो समय जब इंडिया का 25% मार्केट शेयर हुआ करता था ग्लोबल ट्रेड में, तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी थी, वो वापस आ गई है. लेकिन हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं. हम में से कितने लोगों ने ERP लगाया कंपनी में, कितने लोगों ने CRM लगाया. हम बोलते हैं महंगा है, लेकिन उसका बेनिफिट है ना. तो हम उनके दबाव में नहीं आएंगे बड़ी कंपनियों के. सिस्टम्स के साथ हम अगर काम करेंगे तो. और
और ये तो बड़ा नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल पैटर्न है। इंडिया में भी यही होता है, इंडिया में नहीं होता क्या? इंडिया में भी जो बड़ी कंपनी है वो भी छोटी कंपनी को नहीं दबाती क्या? इंडिया में भी होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो हमको उसको ओवरकम करने के लिए हमारी बिजनेस या पर्सन में ऐसी कोई फीचर्स होने चाहिए जो हमको निगोशिएटिंग पावर एक अलग पोजीशन पे प्लेस करे, एंड दैट इज इनोवेशन। राइट। एक क्वेश्चन ये है कि अभी आज आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा जोर चल रहा है, और उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए हमें नेटवर्किंग की जरूरत है इंटरनेशनल मार्केट के साथ में। तो अभी जो इंडिया की छोटी छोटी कंपनियां हैं वो इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाती हैं। तो क्या कोई कलेक्टिव एक्सपोर्ट मॉडल बन सकता है क्या, जिससे कुछ कंपनियां मिलकर कलेक्टिवली एक्सपोर्ट करना शुरू करें और जिससे सबका भला हो? ये बहुत बढ़िया आपने बात रखी। मैंने 10 साल अफगानिस्तान में काम किया। मैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कॉन्ट्रैक्टर था। 2003 में मैंने काम चालू किया। तब अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्या थी? लैंड लॉक था। कराची पोर्ट था और बंदर अब्बास का ईरान का पोर्ट था, इनके पास तो पोर्ट नहीं था। और इनके बादाम, पिस्ता, किशमिश, अंजीर ये सब बड़े फेमस है, लेकिन इनको एक्सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान के थ्रू करना पड़ता था। तो बहुत सारी चोरी हो जाती थी, परेशान करते थे। वो लोकली पाकिस्तानियों को बेच देते थे और पाकिस्तानी आगे सबको बेचते थे। इंडिया भी खरीदता था, 60% बादाम इंडिया खरीदता था अफगानिस्तान से। हम लोगों ने वहां पे इंटरवेंशन चालू किया एक्सपोर्ट मार्केट को लेके, और हमने यही किया, इसको बोलते कंसोर्टियम। हमने 6000 फार्मर्स का एक ग्रुप बनाया, लेकिन 6000 फार्मर तो बहुत हो गए, तो उसमें हमने 12 एंटरप्रेन्योर टाइप के लोगों को निकाला, उनको 6 महीना ट्रेनिंग किया और एक कंसोर्टियम के रूप में कंपनी बनाई। वो बहुत पॉपुलर मॉडल है, उसको क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एक कंसोर्टियम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम उसके अंदर 6 मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 लोग होने चाहिए। ठीक है, वो उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। और आज की तारीख में आप मानोगे नहीं कि वो मेरे ख्याल से 350 करोड़ रुपए के बादाम ऑनलाइन इंटरनेट पे बेचते हैं। हम नहीं बेचते इंडिया से ऑनलाइन इंटरनेट पे। उनका अभी भी आपको मालूम होगा या नहीं कि वहां पे पावर प्लांट कोई भी नहीं है अफगानिस्तान में। उनका पावर अभी भी कजाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से आता है। और उनका जो कंप्यूटर है और इंटरनेट है, जनरेटर से चलता है, सोचिए। और वो ऑनलाइन बेचते हैं कंसोर्टियम के थ्रू। तो कंसोर्टियम का मॉडल किया जा सकता है। खाली दिक्कत एक ही है कि जो माइंडसेट है 6 लोगों का जिनका ये ग्रुप बना, वो एक सेम लेवल पे होना चाहिए, और दूसरा उनकी वो या तो वो सेम इंडस्ट्री ग्रुप से हो, या फिर एक्सट्रीमली मतलब डिस्टिंक्टली अलग ग्रुप से हो। एक टेक्सटाइल वाले, एक एग्रो वाले, अलग अलग मॉडल है। ये किया जा सकता है, ये काफी सालों से सक्सेसफुली। एक्चुअली राकेश जी, यूरोप बहुत कम लोगों को पता है, यूरोप पूरा खड़ा ही कंसोर्टियम मॉडल से हुआ। वेरी गुड। 50-60 साल पहले शुरू में वहां कंसोर्टियम ही चले। बाद में हर कंसोर्टियम का मेंबर इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने अपना फिर बड़ी बड़ी कंपनियां चालू कर दी। कंसोर्टियम मॉडल यूरोप से निकला है। वेरी गुड सर, लास्ट क्वेश्चन एज विद ऑल द स्पीकर्स, कि आज का जो पेंडेमिक का दौर है, इस दौर से निकलने के बाद में पूरा बिजनेस का नॉर्म्स बदल गए हैं। इसमें आपकी कोई स्पेशल एडवाइस बिजनेसमैन को कि अपनी अप्रोच को कैसे बदलना चाहिए? मेरा तो क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है राकेश जी की ये 8 चीजों को करे। वी आर इन नॉलेज इकोनॉमी। देखे कितना आप अपने नॉलेज को बिजनेस में यूज कर सकते हैं या नॉलेज गेन कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल इकोनॉमी, कितना ज्यादा आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम इकोनॉमी, एनकरेज कीजिए अपने लोगों को घर से काम करें। आप खुद भी कोशिश करें घर से। आपकी कॉस्ट कम हो गई, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इनफैक्ट टीसीएस ने बोला कि उनकी 30% प्रोडक्टिविटी वेंट अप आफ्टर पीपल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड कॉस्ट हैज गॉन डाउन। तो प्रॉफिट तो बढ़ गया ना। सारे लॉस कर रहे थे, वो प्रॉफिट बढ़ गया। और चौथा कि यंग लोगों को हायर कीजिए, यूथ को हायर कीजिए और उनको एम्पावर कीजिए, उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दीजिए। वो लोग डिजिटली कनेक्टेड है। 65% इंडिया का पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, 50% इज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। वो तो मार्केट है हमारा। तो उन्हीं लोगों को बोलो ना मार्केट करने को। उन्हीं लोगों को आप एम्पावर करो अपने प्रोडक्ट्स या बिजनेस स्किल से, और उन्हीं को मार्केट करने को बोलो। सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया है। सोशल मीडिया, मैं हमेशा जोक करता था 2014 में
कि भाई अपने यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो फेसबुक के ऊपर प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या हम लोग अपना बिजनेस नहीं डेवलप कर सकते क्या? है ना? आई नो, उसमें आपका भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, वो है, लेकिन कहने का क्या मतलब है कि भाई उनको ऐसी सोच थी 2014 में कि सोशल मीडिया इज ए टूल ऑफ मार्केटिंग। राइट। पॉलिटिक्स भी तो मार्केटिंग ही है। ओके सर, थैंक यू सो मच जगत जी, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली, और हर बार जैसे पेट मन नहीं भरता पर समय खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Pleasure. Thank थैंक you यू। for the opportunity.